if you are connected to me and joining me, so hello, be keep quiet. Now listen, please can you give your presentation if you are listening me? How many students are connected? Getting connected? Hello. Just I want to listen. Yes, Ayushing. Yes, Ayush. Jaiswal. Yes, very good morning. Good morning. Ayushing. Yeah. Yes, due to network problem. Okay, okay. Just manage. And hello. Yeah, Amit Singh. Good morning. Good morning. You all are listening me? Yeah. Okay. Just I am going to start. I think you can easily get each and everything. And in our yeah, Himanshu Jaiswal, yes. Okay, okay, good. So student, uh, yes, okay, yeah, yeah. And other students, though please share the link for your other class fellow. So I'm just going to start today my chapter. Before starting, I want to discuss with something new. In previous classes, we are already means recorded classes. We are already reading about the issue of debentures. Clear? If you want to recall any topic from that chapter or issue of share, firstly, you can comment me, I can recall that one. If you have any problem. If you have any problem in previous topics, you can or comment me, I can recall it. Otherwise, I am going to start our new chapter, redemption of debenture. Clear? Comment me, anyone. Can you listen me? Dear students, okay. Just I am going to start the new chapter. Now, listen. Redemption of debenture. Now, listen. In the issue of debenture, we are reading company have two fund. We can already know about that one. Means the number of shares means owner fund and borrow fund. In owner fund, we are reading about the shares, and issue of shares we can already read about the equity share and debenture. Sorry, preference share. In equity share, we can already read all the term and condition issue at part just because previous chapter. So you have to listen. Okay, now listen. We are we are in issue of share reading about the issue of equity share, issue of preference share, and there we are already read about the issue of share at par at premium. Same thing, issue of share at consideration other than cash. We are already read about the feature of share, issue of feature share, amount of capital given. I think you have to already read. If you are not still not read it, so you have to read part and lectures also. Now we par and premium. Par means when the face value is equal to issue price, then it is known as par. When the face value is exceed, then it is known as issue at premium. If face value is 10, then you and issue price is 12, then it is premium. But we are already read that the sale is issued only both issue at par and premium. But here in case of issue of debenture, we are reading and also discount. Why I am telling you those things issue at par and premium and discount? Because it is mandatory for you in case of issue of debenture as well as issue of redemption of debenture. So listen, होता क्या है?
हम लोगों ने पहले देखा था कि जो शेयर जो भी डिवेंचर कंपनियां इश्यू करती है, उन डिवेंचर्स को कंपनी क्या करती है, क्योंकि ये बारो फंड होता है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन? आई एम टेलिंग यू। देखो, कंपनी जब रेज करती है फंड डिवेंचर के थ्रू, तो वो एक बारो फंड होता है, और अगर हम किसी से अमाउंट बारो करते हैं तो वी हैव टू रिटर्न। तो इसके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, डिफरेंट टर्म कंडीशंस हैं इसको, इस अमाउंट को रिटर्न करने का। सॉल्यूशन हियर, द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज रीपेमेंट the principal amount as well as interest of debenture। रिडम्पशन का मतलब क्या बताए हैं? रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर to the amount of debenture to the debenture holder, the principal amount as well as interest। जो भी अमाउंट हमने उधार लिया था उसको वापस करेंगे, और साथ में जो उसका इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट को वापस करना, ये क्या होता है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर? नाउ लिसन, इन केस ये तो हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कंपनी हैव ऑप्शंस, देयर आर, मींस वी कैन इन हियर कंपनी में रीडिंग। अब देखो ये वापस कैसे होगा? तो वापस करने के लिए कंपनी के पास क्या है? 4 कंडीशंस हैं। इसमें से जो सबसे पहले है, या तो कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में वापस कर दे, जैसे कंपनी ने आज लिया और 5 साल बाद क्या करे, पूरा जो 10 लाख रुपए का अगर कंपनी ने 10 लाख रुपीस का लोन दिया, और कंपनी क्या करती है, उसका लंप सम पेमेंट करती है। लंप सम मींस आफ्टर 5 ईयर कंपनी हैव टू रीपे द अमाउंट। तो जिस दिन 5 साल पूरा होगा उस दिन कंपनी क्या करेगी, इसको वापस कर देगी डिवेंचर होल्डर को। क्लियर? एक कंडीशन क्या होती है, कंपनी में पे द अमाउंट मींस रिटर्न द अमाउंट या रिडीम द डिवेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट। ये क्या होता है? इंस्टॉलमेंट मींस कंपनी सेज दैट वी आर रिटर्निंग योर अमाउंट ऑफ डिवेंचर 2 lakh per annum, means company repay the amount 2 lakh first year, 2 lakh second, third, fourth and fifth। It means totally company repay the amount। This is also known as installment method। This is known as installment method। इन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। और ये जो डिवेंचर्स के रिडम्पशन के जो कंडीशंस होते हैं, ये कंडीशंस कुछ इस तरह से। सबसे पहले आइए मैं आपको इसके लिए जर्नल एंट्रीज बताता हूँ। जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्री बताते हैं। फर्स्टली लिसन, फर्स्ट व्हेन द कंपनी, देखो जब कंपनी क्या करती है, कंपनी जब भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में कंपनी को रिक्वायरमेंट पड़ती है, कंपनी कैसे अमाउंट को वापस करेगी, तो इसके लिए 2 कंडीशन है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ए कंपनी मींस वी कैन से दैट अ कंपनी कैन रिडीम इट्स डिवेंचर बाय, कैसे कर सकती है पैसा वापस? तो 2 ऑप्शन है। फर्स्ट फ्रॉम कैपिटल और फ्रॉम प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, कोई भी कंपनी जो अमाउंट रिटर्न करेगी, अगर वो कैपिटल से, जैसे क्या हुआ, कंपनी ने 5 साल के लिए लोन लिया था, आज 5 साल पूरे हो गए, तो 5 साल पूरे हो गए, तो कंपनी अगर कैपिटल से करेगी तो उसकी कैपिटल में कमी हो जाएगी, यानी क्या कंपनी अच्छी नहीं होगी, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट कमाई है, अगर कंपनी प्रॉफिट से जो कर्ज ली है उस अमाउंट को वापस करेगी तो वो अच्छा होता है, वो अच्छा माना जाता है। ठीक, तो आउट ऑफ प्रॉफिट इसको, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है, ये उसके क्रेडिट वर्दीनेस के लिए काफी अच्छा होता है। क्लियर?
Can you understand each and everything whatever I have told you? Please comment me. Ayush, Himanshu, can you get in? Now listen. तो देखो रिडम्पशन, ये दो मेथड मैंने आपको रिडम्पशन का बताया था। दो मेथड में से थर्ड मेथड, फर्स्ट मेथड जो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर in lump sum. When all the debenture are redeemed by paying in lump sum at the time, it is called redemption in lump sum. Company may adopt any of the following 2 points, means redemption out of capital and redemption out of profit. Listen. In case the journal entry pass in the case when the company, अब देखो होता क्या है, जो कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल के एक, ओके जस्ट आई एम मैनेजिंग, ओके जस्ट आई एम राइट एट नाउ company had 2 options. Company whether to return the amount from out of capital, first out of capital, and second out of profit. Now I am already explained both means from out of capital means जब company अपने capital से amount return करेगी, that this is known as out of capital, and when the company is repay the amount from their profit, then it is known as out of profit. Now listen. It is in case, अब देखो जब कंपनियां क्या करती हैं, डिवेंचर होल्डर्स का अमाउंट रीपे करते हैं, जब रीपे करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उनको एक क्या करना पड़ता है, रिजर्व बना के रखना पड़ता है। रिजर्व बना के, ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब कंपनी पेमेंट करेगी तो कंपनी का जो भी अमाउंट्स है, जो भी कैपिटल्स है, वो क्या होंगे, अफेक्टेड। सॉल्यूशन, it is the set and aside out of surplus the balance in profit and loss of the redeem for redeem the debenture, section 71 subsection 4 of the Companies Act 2013 says that company to require debenture redemption reserve out of profit available for the payment of dividend, the amount is to credit debenture redemption reserve and account shall be utilized for the company accept redemption reserve. Means we can say that when the company made the redemption from the out of profit, in such situation company had to create DRR. This is known as debenture redemption reserve। अब ये रिजर्व क्या होता है, तो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट में से, कंपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के क्या करती है, एक रिजर्व में रखती है, जिससे क्या होता है, कंपनी रिडम्पशन के बाद उस अमाउंट को फिर से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करती है। नीचे द रूल ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, ये कहता क्या है, डीआरआर क्या बनता है, तो कह रहा है कि डीआरआर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी एट द रेट ऑफ 25%। कितना बनता है डीआरआर, जितने का डिवेंचर यानी 1 लाख रुपए का डिवेंचर है तो उसका 25% क्या बनेगा, डीआरआर बनेगा। यानी कंपनी एक अकाउंट ओपन करेगी, पीएल से पैसा ट्रांसफर, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी पीएल अकाउंट से जितने अमाउंट का डिवेंचर रिडीम करेगी, मान लो अगर 1 लाख रुपए का अमाउंट क्या करने जा रही है, रिडीम करने जा रही है, तो उसका 25% पीएल अकाउंट को डेबिट कर लेगी और डीआरआर में ट्रांसफर कर लेगी। क्लियर? जस्ट आई एम टेलिंग यू, लिसन। इफ इट इज मेंशन दैट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना क्या करना है। सबसे पहले इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट रिडम्पशन इज आउट ऑफ कैपिटल, then DRR should be created with 25% of nominal value of debenture. Means when out of capital, then 25% of nominal value. Nominal value means जो भी face value है उसका 25% DRR बनेगा।
Clear? Now listen. If it is mentioned that redemption is totally out of capital, then DRR should be created 100% of nominal. यानी क्या, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट यानी जो भी मान लो अगर जो डिवेंचर था कंपनी 1,00,000 रुपए की इशू की, आज 1,00,000 रुपए वापस करना है, तो जब कंपनी 1,00,000, ओके ओके जस्ट आई एम टेलिंग लेटर जस्ट आई एम टेलिंग लिसन माय वर्डिंग. Listen, when company out of capital, when company redeem the debenture from out of capital, then 25% of nominal value DRR is created. Nominal value DRR is created. Clear? Now it's clear. When company redeem total from their out of profit, then in such situation the company should create 100% of nominal value DR. Nominal value DRR. Clear? दो चीज, पहला मैंने बताया कि जब कंपनी प्रॉफिट से डिवेंचर को रिडीम करेगी तो 25% डीआरआर बनेगा. सेकंड थिंग मैंने बताया जब कंपनी प्रॉफिट से यानी आउट ऑफ प्रॉफिट डिवेंचर को रिडीम करेगी तो ऐसे सिचुएशन में 100% नॉमिनल क्या बनेगा, नॉमिनल वैल्यू का डीआरआर बनेगा. थर्ड, इफ इट इज नथिंग मेंशन अबाउट द सोर्स ऑफ रिडम्पशन देन एज पर सेबी गाइडलाइंस वी हैव टू क्रिएट डीआरआर 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू. क्लियर? मींस अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है और ना तो आउट ऑफ कैपिटल, दोनों कंडीशन में नहीं हो रहा है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, 25 एज पर सेबी रेगुलेशन. नाउ लिसन, अब देखो, इफ एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन DRR is already exists with more than 25% nominal value of DRR, then in case total 100% of the nominal value is to be transferred in DRR. हाँ देखो बच्चों होता क्या है, होता ये है कि कभी कभी आवे, why are you late? Now listen, it is don't be late, otherwise I send you outside. Clear? Now listen. Here. Now listen. Here. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन कि कैपिटल से होगा तो 25% डीआरआर बनेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो 100% डीआरआर बनेगा. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहा है तो 25% डीआरआर बनेगा नॉमिनल वैल्यू का. एक लास्ट सिचुएशन सुन लो. Sometime in our question it is already given that the balance of DRR, the company have balance of DRR, means 50,000 का DRR we have to create. But listen, if already in our question DRR is given 3 lakh, in such situation we have to assume that the company should require 100%. एकदम ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से आपको एक चीज समझना है, क्लियरली सुनना. मैंने अभी डीआरआर को बनाने के 4 कंडीशंस बताए. पहले कंडीशन में मैंने बताया, पहले कंडीशन में ओके नेटवर्क प्रॉब्लम, तो साइलेंट कंडीशन समझ में आया. पास इन द केस, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि वी हैव टू क्रिएट डीआरआर. ठीक, अब डीआरआर बनाने के लिए मैंने बताया कि एग्जम्पशन है 2-3. ये ध्यान में रखना कि कुछ कंपनियों को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है. मींस सम कंपनी हैव एग्जेम्पशन फॉर द क्रिएशन ऑफ डीआरआर. वो कौन सी कंपनी है तो पहले सुन लो. एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई. कौन? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये कौन चलाता है? इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई. ठीक. सेकंड, बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग
कंपनी। ठीक, इनको क्या करना है, इनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये कर्ज लेते हैं डिवेंचर से और उसको रिपे करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यानी इनकी अगर क्वेश्चन पढ़ना, कभी भी क्वेश्चन पढ़ना, अगर बैंक का नाम दिया है, बैंक है, तो डीआरआर मत बनाइएगा। एग्जाम है वो, उनको डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती ना। अब देखो आप, द ऑन क्रिएशन ऑफ डी, सबसे पहले जब क्रिएट करेगी डीआरआर तो क्या जर्नल एंट्री होगी, क्रिएशन ऑफ डीआरआर। मन में सोच लो, अभी जस्ट मैंने बताया कुछ देर पहले, आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि डीआरआर में पैसा कहां से जाएगा। चलो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ, that is we can say that statement from, we can see that is statement of profit and loss, profit and loss account। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। टू, कहां पैसा ट्रांसफर करना है, क्योंकि हम डीआरआर क्रिएट कर रहे हैं, तो डीआरआर, और ये डीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, मैंने बताया जितने रुपए का डिवेंचर रिडीम होगा उतने रुपए के नॉमिनल वैल्यू का 25% किस सिचुएशन में, आउट ऑफ कैपिटल वाले में, आउट ऑफ प्रॉफिट की सिचुएशन में 100%, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 25%। क्लियर? नाउ लिसन, एक होता है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई, डीआरआई, उसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। ये क्या होता है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी बनाती है। कंपनी क्या करती है, जितने रुपए का डिवेंचर कंपनी के पास है या रिडीम करना है, मतलब लोन लिया था और इसको रिडीम करेगी, तो 30 ऑफ अप्रैल जिस फाइनेंशियल ईयर में, मान लो ये 2020 एंड 21 है। क्लियर? 2020 और 21 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ 1 अप्रैल 2020 से 21 में हमको 21 को यहाँ पे 10 लाख रुपए दिए, यानी 31 मार्च 2021 को ये रिपे करना है। तो जब रिपे करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2020 को डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा, यानी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? एकदम घबराना मत, डीआरआर समझ में आ गया होगा, ये भी अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो डीआरआई क्या होता है कि ये डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट होता है, और कंपनी को बनाना कितना पड़ता है, ये 15% ऑफ रिडम्पशन वैल्यू, जितने का डिवेंचर कंपनी रिडीम करने जा रही है उसके। तो देखो इसके लिए क्या होता है, यानी पहला जर्नल एंट्री ये होगा। सेकंड डीआरआई, मैंने बताया कि कंपनी क्या करती है, डीआरआई बनाती है, ठीक, और उस डीआरआई को कंपनी इनकैश कर लेती है बाद में। अभी देखते हैं ना, मैंने आपको अभी ये जस्ट जितना बताया उतना समझिए कि डीआरआई फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को रिडीम करना होता है डिवेंचर, उस फाइनेंशियल ईयर में बनाया जाता है 30 अप्रैल को। ठीक, कितने का, 15%। क्लियर? रेट ऑफ द डीआरआई इज 15%। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होती है, सेकंड जर्नल एंट्री हुआ creation of, we can say that investment made, we can say that investment made। अब देखो इन्वेस्टमेंट मेड करना है ना, पैसा हमारे पास से जाएगा, जाता है तो क्या करते हैं हम, टू बैंक, और किसके लिए जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या लिखेंगे, डिवेंचर, डिवेंचर, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई अकाउंट देगी टू
बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यानी क्या DRI अकाउंट डेबिट। इन कॉपियों लिखते चलो थोड़ा सा, या तो पहले डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में डिवेंचर को रिडीम करना है। जैसे होता क्या है कि इसीलिए मैंने पार और प्रीमियम को आते आते ही आपको सबसे पहले बताया कि समटाइम कंपनी इशू द डिवेंचर एट पार बट रिडीम द डिवेंचर एट प्रीमियम एंड एट पार। मींस डिस्काउंट पे तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको इशू वाले चैप्टर में बताया था कि अगर किसी, मान लो आपने किसी को 5000 रुपए दिया कि देखो एक काम करो, मैं आपको इस 5000 रुपए के बदले में 4900 लोगे, आप लोगे नहीं ना। इसलिए डिवेंचर का जो रिडम्पशन होता है वो डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। कोई भी पर्सन अगर किसी को कर्ज देगा तो जो कर्ज देगा उससे कम अमाउंट को लेगा नहीं, ठीक। तो याद रखना वो क्या होता है, मैंने पहले बताया था रिडम्पशन इस पे रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, डी करेंगे कि हमको कितना अमाउंट उसको डिवेंचर होल्डर को पे करना है। ड्यूटी इंक्लूड करेंगे अमाउंट इन ड्यू टू डिवेंचर, जो कंडीशन एक ही में बता देते हैं आपको एट पार है। कैन यू हियर ओके व्हाट हैपेंड, DRR is already given in question. Yes, I am saying that when DRR is already given in question and the amount of DRR, listen, the amount of DRR is more than 25%. अगर मान लो आउट ऑफ प्रॉफिट है तो हमको पता है आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में 100% बनाना है DRR, ठीक। तो 10 लाख रुपए का 10 लाख का पूरा DRR बनेगा और बैलेंस में ऑलरेडी 3 लाख का है तो 7 लाख रुपए का और DRR की जनरल एंट्री पास करेंगे। सेम जनरल एंट्री 7 लाख रुपए से पास करेंगे, नहीं दिया है तो 10 लाख से पास करेंगे, 10 लाख। अगर क्वेश्चन में 3 लाख का DRR में ऑलरेडी बैलेंस है तो 7 लाख रुपए से जनरल एंट्री पास करेंगे। क्लियर, ओके। अब देखो एट पार, अगर ये कितने परसेंट डिवेंचर का पैसा डिवेंचर अकाउंट किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस करना है। डिवेंचर होल्डर किसको वापस करेंगे हम, डिवेंचर होल्डर को। क्लियर, अगर यही एट प्रीमियम हो तो डिवेंचर होल्डर को हमको क्या देना पड़ेगा, डिवेंचर का अमाउंट और साथ में उसका प्रीमियम भी देना पड़ेगा कि नहीं। यानी क्या, रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो हमको अपना जो उसकी फेस वैल्यू है वो तो वापस करेंगे, साथ में उसके प्रीमियम की भी वैल्यू वापस करेंगे। क्लियर, तो देखो अब एट तो ऐसे सिचुएशन में डिवेंचर के साथ क्या आ जाएगा, प्रीमियम भी आ जाएगा और उसको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखो इसको डिवेंचर कैन यू यस डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, just 1 minute, here look here, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, क्लियर, टू डिवेंचर होल्डर। जो मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, पहले अगर पार है तो बस डिवेंचर का पैसा डिवेंचर होल्डर को देना है, ड्यू कर लेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अगर प्रीमियम पे रीडिंग हो रहा है तो क्या लिखेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ठीक, बस 2 जनरल एंट्री और है, उसको आप देखिए, मैं इस साइड से लिखता हूं। ओके, जस्ट 1 मिनट, just listen. Here I have place, so listen, and then after I also show you, you have to write there. Listen here.
अब कंपनी को क्या करना पड़ता है, अब कंपनी को इस जो उसने DRI बनाया हुआ था इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट को 31 मार्च 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मींस जिस दिन एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, उस दिन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बेच देना पड़ेगा। यानी उस इन्वेस्टमेंट को खत्म करके पैसा लाना पड़ेगा। जो 15% का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था उसको सेल करके फिर कंपनी को पैसा लाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, जब मैंने क्रिएट किया था DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि उस समय मैंने क्या किया था, DRI मेड किया था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, उस DRI को वापस ला रहा हूँ। तो वापस लाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, उसके रिवर्स जर्नल एंट्री करने से क्या होगी, हमारे पास पैसा वापस आ जाएगी। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट ये कब जर्नल एंट्री पास होगी, 31 मार्च, ये 31 मार्च और ये 30 अप्रैल का। तो देखो ये होगा क्या, बैंक हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या DRI एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 15%। जो भी हमने DRI पेड किया था वो हमारे पास वापस आ जाएगा। इट्स क्लियर, क्लियर, बैंक अकाउंट टू DRI। अब क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ ड्यू की थी डिबेंचर होल्डर को, वो पैसा हमको पेड करना पड़ेगा। तो जब पेड करेंगे तो डिबेंचर होल्डर को हम क्रेडिट किए थे कि हमको देना है, अब डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएगा, हाँ समझ गए, देखो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और क्या करेंगे टू बैंक, और अगर मान लो जो भी अमाउंट था वो हम क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। और डिवेंचर और रिडीम, जब पूरा डिवेंचर रिडीम हो जाता है तो जो हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री की थी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट जो DRR बनाया था, उस DRR को हम क्या करेंगे, अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। वो जो DRR था वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी की कैपिटल कम नहीं हो रही, कंपनी की कैपिटल कम नहीं हो रही है। नाउ लिसन DRR एज पर, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ड्यू की जर्नल एंट्री की, ड्यू की जर्नल एंट्री में डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, ठीक। अब देखो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, अगर पार्ट पे है तो प्रीमियम पे रहेगा, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ये देखो ये हमारा हो जाएगा डी की एंट्री। फिर मैंने आपको वहां बताया बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, उस DRI को बेच के 31 मार्च को पैसा लाएंगे। देन आफ्टर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट टू, मैं आपको ये बताया कि सॉरी लिसन, हाँ 1 मिनट I have